سب سے پہلے آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں۔ سندھ میں بے روزگاری کے بادل چھٹیں گے، روزگار کے مواقع کھلیں گے۔ سندھ حکومت نے دابھیجی اسپیشل اکنامک زون منصوبے کو 10 سال کے لیے ٹیکس فری قرار دے دیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو دعوت دی ہے۔ کہا ہے کہ منصوبے کے ذریعے ملک میں $5 ارب آنے کی توقع ہے۔ چیئرمین دھابیجی اسپیشل اکنامک زون نے کہا کہ 50,000 افراد کو نوکریاں بھی ملیں گی۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ بے روزگاری کے بادل چھٹیں گے، روزگار کے مواقع کھلیں گے۔ دھابیجی اسپیشل اکنامک زون سے ہزاروں لوگوں کو نوکریاں میسر آئیں گی۔ نیا منصوبہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ سندھ حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو انڈسٹری لگانے کی پیشکش کر دی۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے سرمایہ کاروں کے لیے اکنامک زون کو 10 سال کے لیے ٹیکس فری قرار دے دیا۔ بتایا کہ امپورٹ مشینری پر بھی کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ فورن انویسٹرز آئیں اور فورن انویسٹرز پاکستان میں اور کراچی شہر میں اپنی انڈسٹریز لگائیں، اور جو بھی فورن انویسٹر یا لوکل جو یہاں پہ آئیں گے ان کو 10 سال کے لیے ٹیکس کی چھوٹ ہوگی، اور جتنے بھی مشینری امپورٹ ہوگی ان فیکٹریز کے لیے، ان انڈسٹریز کے لیے، اس کو امپورٹ کرنے میں کوئی ڈیوٹی ان کو پے نہیں کرنی پڑے گی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر قاسم نوید کمر نے اسپیشل اکنامک زون میں سرمایہ کاروں کو سستی بجلی فراہم کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ سندھ الحمدللہ پورے پاکستان کا اس وقت پاور ہاؤس ہے۔ زیادہ میں زیادہ بجلی کی پیداوار صوبہ سندھ سے ہوتی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ رینیوبل انرجی، ہمارے جو ونڈ کوریڈور ہے، رینیوبل انرجی تھرو ونڈ اینڈ سولر، وہاں سے یہاں پہ ڈائریکٹ بجلی کی کنیکٹیوٹی دیں، تاکہ ریگولر جو ہم ڈسکو سے بجلی خریدتے ہیں اس سے بھی زیادہ سستی ہم بجلی یہاں پہ فراہم کر سکیں اور ان انٹرپٹڈ بجلی فراہم کر سکیں۔ چیئرمین دھابیجی اسپیشل اکنامک زون محبت خان کا کہنا تھا کہ منصوبے کے ذریعے 50,000 نوکریاں ملیں گی۔ پروجیکٹ میں سالڈ ویسٹ، سیوریج اور واٹر سپلائی کے سسٹم کو گرین انوائرمنٹ کے مطابق رکھا گیا ہے۔ پوری دنیا میں جو انوائرمنٹ کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس میں گرین انوائرمنٹ کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، اور اس کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور پانی کی نکاسی اور اس کے علاوہ بجلی کا جو سلوشن ہے وہ ہائیبرڈ سلوشن پہ رکھا گیا ہے، اور جغرافیکل پوزیشن کی وجہ سے ML1 پورٹ قاسم اور فیوچرسٹ پوسٹ جو ہمارا ہے کھیٹی بندر وہ، اور نیشنل ہائی وے اور سی پیک ویسٹرن لوپ، یہ سارے اس کو بڑے ایزی اپروچیبل ہیں۔ کوئی 50,000 امپلائمنٹ متوقع ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 15 جولائی کو دھابیجی اسپیشل اکنامک زون منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ کیمرامین حسات کاوش میمن، سٹی 21۔ دھابیجی اسپیشل اکنامک زون کا افتتاح تو کل ہونے جا رہا ہے۔ سندھ حکومت بجلی کی قلت دور کرنے کے لیے بھی کوشاں ہے۔ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے نائب صدر محمد اظہر ملک نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں اس سال کے اختتام تک تھر کے کوئلے سے مزید 650 میگا واٹ کے پلانٹ سے بجلی بننی شروع ہو جائے گی۔ مزید تفصیلات اشرف خان کی خصوصی رپورٹ میں۔ ملک کے توانائی شعبے کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے۔ تھر کے کوئلے سے بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ خوشخبری سنائی سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے نائب صدر اظہر ملک نے۔ بولے، تھر کول بلاک 2 سے 2640 میگا واٹ بجلی بنائی جا رہی ہے۔ رواں سال کے اختتام تک مزید 660 میگا واٹ بجلی مقامی کوئلے سے بننے لگے گی۔ نیشنل گریڈ میں 2600 میگا واٹ جا رہی ہے، ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی مائن ہے، اور انشاءاللہ اس سال کے اینڈ یا اگلے سال کے شروع تک ہماری کول کی پروڈکشن مزید بڑھ جائے گی، جس سے یہ ہوگا کہ 650 میگا واٹ گریڈ میں اور آ جائے گی، تو تھر سے مجموعی طور پر 3300 میگا واٹ جانا شروع ہو جائے گی، جو کہ مجموعی جو اس کی کاسٹ ہے، قیمت ہے بجلی کی، وہ کم کرے گی۔ اظہر ملک کا کہنا تھا بلاک 2 سے نکلنے والے کوئلے کو قریب ہی کرشنگ پلانٹ پر پہنچایا جاتا ہے، جہاں 3 لاکھ میٹرک ٹن کوئلہ رکھنے کی گنجائش موجود ہے۔ کول مائن سے ڈمپر ٹرک کے ذریعے کول یہاں آتا ہے، اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، لمس ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا کول ہینڈلنگ سسٹم ہے، کرشر لگا ہوا ہے، یہاں کول کا سائز کم ہوتا ہے، سٹور ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں سے دوبارہ ٹرک لوڈ کرتے ہیں، اور یہ آپ کو جو پاور پلانٹ نظر آ رہے ہیں جو 1330 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، یہ تینوں پاور پلانٹ کو یہاں سے سپلائی ہو جاتا ہے۔
मुल्क में तवानाई बहरान के खात्मे के लिए कोयले से बिजली की पैदावार फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गई है, जिससे मुल्क में फी यूनिट की लागत 15 रुपए तक आ रही है। कोयले के नए प्लांट लगने से आवाम को मजीद सस्ती लगेगी। अशरफ खान, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि सूबे में आती मुजरिमों की निगरानी से मंजूर कर लिया गया है। बिल के मुताबिक चोरी और डकैती इक़दाम में कत्ल के मुल्ज़िमान को कड़ा लगाया जाएगा ताकि आती मुल्ज़िमान की निगरानी की जा सके। इजलास में शहर में पानी की किल्लत पर भी बहस की गई। सलीम बलोच ने कहा कि K4 की तकमील तक पानी की किल्लत रहेगी। मजीद इस रिपोर्ट में। सिंध असम्बली इजलास में आदी मुजरिमों की निगरानी का बिल मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। बिल के मतन के मुताबिक मंशियात के आदी अफराद चोरी व डकैती इक़दाम कत्ल के मुल्ज़िमान कार और मोटरसाइकिल चोरी व छीनने पर इलेक्ट्रिक कड़ा लगाया जाएगा, जिससे उनकी निगरानी हो सकेगी और जराइम की शरह में कमी हो सकेगी। इसमें से बेसिकली है कि जितने भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जैसे ही पुलिस इनको पकड़ेगी, उसके बाद फिर जब वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और वंस दे आर प्रूवन टू बी हैबिचुअल ऑफेंडर्स, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दे विल बी फिक्स्ड विद एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और वो सर अपनी श्योरिटी जो है वो मैजिस्ट्रेट्स के पास ही रखवाएंगे। उसके बाद वहाँ से वो मॉनिटर होंगे ताकि वो फर्दर ऑफेंसेस कमिट नहीं करें। कराची में पानी किल्लत पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात सलीम बलोच का कहना था कि K4 की तकमील तक पानी की किल्लत रहेगी। के इलेक्ट्रिक के मुआहदे से मुताल्लिक सूबाई वजीर बराए तवानाई इम्तियाज शेख बोले, बिजली और गैस वफाकी हुकूमत कंट्रोल करती है, कोई कंपनी अगर दिलचस्पी ले तो इसे सपोर्ट करेंगे। सर मैं ये अपने फाजिल मेंबर को ये भी वाजे कर दूं कि बिजली और गैस दो सब्जेक्ट्स हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये पावर डिवीजन से कंट्रोल होते हैं, और जो लोड शेडिंग की उन्होंने बात की, वो NTDC जो है इदारा है, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी जो है फेडरल गवर्नमेंट की है, लाहौर में उसका दफ्तर है। वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि 8 घंटे लोड शेडिंग करनी है, 4 घंटे करनी है, 6 घंटे करनी है। सिंध असम्बली में सिंध एक्सप्लोजिव बिल मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया गया, जिसके तहत सूबे में माइन और मिनरल्स के लिए खुदाई के दौरान इस्तेमाल होने वाले बारूद के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। बरतानवी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान के सबसे बड़े कराची को शहर को दुनिया के 5 सबसे कम काबिले रिहाइश शहरों में से एक करार दे दिया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जानिब से जारी करदा सालाना इंडेक्स के मुताबिक कराची को दुनिया के नाकाबिले रिहाइश शहरों में शुमार किया गया है। साल 2022 के लिए यूनिट के आलमी काबिले रिहाइश इंडेक्स में कुल 172 ममालिक में रिहाइश के लिहाज से कराची 169वें नंबर पर है। इंडेक्स के मुताबिक कराची का मजमूई स्कोर 42.5 है, जो मसाली से कम है। इस्तेहकाम से मुतालिक इशारे के हवाले से शहर में सबसे ज्यादा खराब सूरत हाल सामने आई, जहां इसका स्कोर 20 रहा, जो कि 2022 के नंबर जैसा है, जिसका मतलब है कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान शहर की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई। सेहत की देखभाल से मुतालिक शहर कायद का स्कोर 50, सकाफत और माहौलियात से मुतालिक 38.7, तालीम से मुतालिक 75 और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक 51.8 रहा। दुनिया भर के शहरों को कोविड-19 के बाद की बहाली की सूरत हाल पर नजर रखते हुए मुरतब किया गया। फहरिस्त में शामिल शहरों की काबिले रिहाइश होने की दर्जा बंदी इनके 5 शोबों की कारकर्दगी की बुनियाद पर की गई है। इन 5 शोबों में इस्तेहकाम, सेहत की देखभाल, सकाफत व माहौलियात, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। हर शहर में इस्तेहकाम, सेहत की सहूलियात, सकाफत, माहौलियात, तालीम और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का पैमाना जांचने के लिए 30 पॉइंट्स रखे गए थे, जिनका मियारी और मिकदारी अवामल के तहत जायजा लिया गया। फहरिस्त में सिर्फ 4 शहरों लागोस, अलजायर, तराबलस और दमश्क को रहने के लिहाज से कराची से बदतर शहर करार दिया गया है। काबिले रिहाइश होने के अवामल का जायजा लेने और इनकी जांच करने के लिए 1 से 100 की हद तक स्कोर को मुरतब किया जाता है। स्कोर के मुताबिक नंबर 1 को नाकाबिले बर्द और 100 को मिसाली ख्याल किया जाता है। कराची को रिहाइश के लिए बदतरीन करार दिए जाने पर शहरियों ने भी बुनियादी मसाइल गिनवा दिए। कई शहरियों ने कराची का मवाजना लाहौर से कर दिया। बेशतर ने तमाम मसाइल के बावजूद शहर को पसंदीदा करार दे दिया। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, टूटी हुई सड़कें, गटरें भरी हुई है जगह जगह,
और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ सुनता नहीं है, कोई किसी की सुनता नहीं है। कराची पहले खुशगवार शहर था, अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सरकारी अस्पतालों का भी निज़ाम सिविल लेवल का कोई इतना खास नहीं है, सही नहीं है। कराची तो कराची है, बेहतर है, बेस्ट है कराची। लाहौर कराची में तो ठंडक ही नहीं है, ना गर्मी है, बहुत सी गंद बहुत फैली हुई है। सरकारी अस्पतालों का कोई निज़ाम नहीं है कराची में। तालीम का मेयार लाहौर में ठीक है, कराची में कोई सरकारी प्राइवेट पैसा खर्च हो रही है, पढ़ाई सही नहीं है। यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे जितने भी हैं उनकी तालीम अच्छी है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनकी एजुकेशन के मामले में इतनी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है, जिसकी वजह से लाहौर जो है हमसे बहुत आगे है। देखिए सरकारी अस्पतालों का जो मयार है वो बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास सिंध में ना होने के बराबर है। लाहौर में जो है ना वो बेहतरी है, ऐसा नहीं है। कराची के और लाहौर के मामले में लाहौर में बेहतरी है, गवर्नमेंट वहाँ पे अच्छा काम कर रही है और वहाँ की तालीम होने की वजह से लोगों में शऊर ज़्यादा है। खूबियाँ दुनिया में बहुत हैं, ये हसीन शहर हसीन है, इस शहर को बस नज़र लग गई ऐसे लोगों की जिन्होंने इसके लिए जो ख्वाब देखे थे चकनाचूर होंगे, सिर्फ ये किताबों में है। सेहत के हवाले से बात करें तो अब्बासी शहीद अस्पताल में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। अस्पताल में अहम मशीनरी बंद होने के साथ अस्पताल की प्राइवेट एम्बुलेंसेज भी गैर फाल हैं। मरीजों को मुश्किलात का सामना है, इंतजामिया खामोश है। देखिए राबेल अशरफ की रिपोर्ट। का सबसे बड़ा अस्पताल अब्बासी शहीद लावारिस हो गया। सिटी स्कैन समेत मुतादिद मशीनें खराब पड़ी हैं। अस्पताल में सेहत की सहूलियात के साथ एम्बुलेंसेज का भी फुकदान है। अस्पताल इंतजामिया ने बजट न मिलने का इल्जाम लगाया। कहते हैं अस्पताल की सूरत हाल बदतर होती जा रही है, यही वजह है कि अस्पताल की प्राइवेट एम्बुलेंसेज भी गैर फाल हैं। अस्पताल आने वालों ने भी एम्बुलेंसेज न होने का शिकवा किया। कहते हैं मरीज को अगर इमरजेंसी की सूरत में दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया जाए तो कैसे लेकर जाएंगे। मुश्किलात तो होती हैं देखें बेसिकली, क्योंकि एक पेशेंट एक जगह पे है तो उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना और एम्बुलेंस लोग ढूंढते हैं, एम्बुलेंस इतनी इजीली मिलती नहीं है। बाहर वगैरह कहीं जाते वो बोलते कि अभी कोई गया हुआ है, हमारा ड्राइवर नहीं है, हमारा ऐसा ये प्रॉब्लम है। तो हम पूछने भाई तो खड़ी हुई क्यों है, तो वो बोलते बस खड़ी हुई है, ख़राब हुई में ये प्रॉब्लम है। शहरियों का कहना है कि यहाँ अस्पताल की एम्बुलेंसेज गैर फाल हैं, जिसके बाइस हमें चीपा और दीगर एम्बुलेंसेज को बुलवाना पड़ता है। यहाँ पे जो एम्बुलेंस है यहाँ पे जो खड़ी हुई है ना बाहर, जैसे काफ़ी छिपा की है, राना की है, प्राइवेट है। अब वो जो है ना चार्जिंग भी ज़्यादा लेते हैं और सिंध गवर्नमेंट ने जो चलाई है ना तो वो डॉक्टर दे रहे हैं लेकर, लेकिन वो पहुंचती इतनी देर में, तो इसलिए मजबूरन वो जाके बाहर से लोग करते हैं। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से अपील की है कि अस्पताल की सबसे अहम एम्बुलेंस सर्विस को फाल किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन शाहजेब के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। जहां सहूलियात का फुकदान है वहीं सिंध हुकूमत सेहत की सहूलियात देने के लिए कोशा है। सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल में 7 नई आजदीद मशीनें नस्ब कर दी गई हैं। सर्विसेज अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खालिद बुखारी कहते हैं कि मशीनों की तनसीब से मुख्तलिफ अमराज की तशखीस और बेहतर इलाज में मदद मिल सकेगी। इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को सेहत सहूलियात की फराहमी में बाजी ले गई। सर्विसेज अस्पताल में भी 7 नई और जदीद मशीनें नस्ब कर दी गईं, जबकि मजीद 13 रवा माह के आखिर तक नस्ब की जाएंगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर खालिद बुखारी का कहना है कि मशीनों की तनसीब से मुख्तलिफ अमराज की तशखीस और बेहतर इलाज में मदद मिल सकेगी। ETD मशीन के अलावा जो है हमने अभी इंस्टॉल किए डेंटल में कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे और एक्सरे जो हैं डेवलपमेंट वो हमने वो इंस्टॉल करवा दिए हैं, और हमारे एनेस्थीसिया मशीन विद वेंट और कैफोग्राम भी उसके साथ वो अटैच की गई है, न्यू मशीन है। और दूसरा ये कि इको मशीन हमारी न्यू जो है वो भी इंस्टॉल हो जाएगी इंशाल्लाह चंद दिनों में। ऑलरेडी इको हमारे पास है, हो रहा है। अच्छा CT स्कैन है हमारे पास, ये हो रहे हैं। और इसके अलावा फिजियोथेरेपी में कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे मशीनें आई हैं वो हमारी जो है इंस्टॉल हो गई हैं। और हमारे जो मेमोग्राफी मशीन हो गई, सियाम मशीन हो गई, ये सब चीज़ें हमारी आ गई हैं और इंशाल्लाह कुछ तो हो गई हैं इंस्टॉल और कुछ हो रही हैं। सर्विसेज अस्पताल कराची में बेहोशी की मशीन, बीमा वेंटिलेटर और कैप्नोग्राफी मशीनें ऑपरेशन थिएटर में नस्ब की गईं, जबकि ETD मशीन कार्डिक OPD में रखी गई हैं। डॉक्टर खालिद बुखारी का मजीद कहना था कि सिंध के सरकारी मुलाजमीन को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी में मदद मिलेगी। ETD मशीन है वो हमने अभी न्यू जो है अभी परचेज़ की है, उसको हमने वो इंस्टॉल किया है, तो वो हमारी वर्किंग हो गई है। इससे ये होगा कि हमारे जो सिंध गवर्नमेंट के जो भी मुलाजमीन हैं उन्हें फ़ायदा होगा, वरना वो बाहर से प्राइवेट से या किसी और हॉस्पिटल से कराया करते थे। तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए है, रिटायर्ड पेंशन लोगों के लिए, पेंशनर्स के लिए है, उनकी फैमिली के डिपेंडेंट्स के लिए है। वो एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बन जाएगा
और बिल्कुल पैरेलल होगा एक किसी भी आला तरीन प्राइवेट हॉस्पिटल के। डॉक्टर खालिद बुखारी ने मशीनों की तनसीब पर वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो और सेक्रेटरी सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा इरफान अब्बासी, सिटी 21। आगे बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। शहर के कई इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। लसबेला जमात खाने के करीब कायम आगा खान पार्क जिना टाउन इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। पार्क में नशा और अफराद की मौजूदगी के बायस लोगों ने यहाँ का रुख करना छोड़ दिया है। वाइस चेयरमैन UC1 जिना टाउन का कहना था कि पार्क के मसाइल मुतलका चेयरमैन तक पहुँचा दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। गुब्बार, मिट्टी के ढेर और हर तरफ सन्नाटे। यह है लसबेला का आगा खान ग्राउंड, जहां लोग आना ही पसंद नहीं करते, मगर स्ट्रीट लाइट्स नहीं। कमरे नशा आवर अफराद की अमाजगाह बन गए। गंदगी के ढेर पार्क की बर्बादी की दास्तान सुना रहे हैं। UC1 जिना टाउन के वाइस चेयरमैन का कहना था कि पार्क की निशानदही जिना टाउन के चेयरमैन को कर दी है। उम्मीद है जल्द मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये मेरे टाउन के जो चेयरमैन साहब है रिजवान भाई, उनकी भी इल्म है, उन्होंने यहाँ पे विजिट भी किया और बहुत बड़ा टारगेट है कि इसको हमने अपडेट करना है, खूबसूरत बनाना है। दरअसल यहाँ पे सरकारी जो हमसे पहले जो था वो एक सिस्टम जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का, इसकी वजह से यहाँ पे अदम तवज्जो रहा, इसका यहाँ पे काम नहीं कर पाए। अब्दुल रहमान महाराज का कहना था कि अगर मुखैर हजरात साथ ना दें तो पार्क की इससे भी बदतर हालत होती। वाइस चेयरमैन ने वाज़ेह किया कि समाजी रहनुमा रमज़ान नाथा हर 3 माह में यहाँ स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करवाते हैं। यहाँ के जो समाजी वर्कर हैं, जैसे कि रमज़ान नाथा भाई जो कि नाथा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, इनकी ही बदौलत जो आप देख रहे हैं जो बचा कुचा पार्क मेंटेन है, तो उनकी ही बदौलत है, क्योंकि यहाँ पे हर 3 महीने के अंदर शावल होता है स्पोर्ट की सरगर्मियाँ रखने के लिए। जिला शर्की का जिना टाउन मौजूदा निज़ाम में एक नया टाउन है, जिसके पास ना तो कोई दफ्तर है और टाउन चेयरमैन के पास कोई इख्तियारात। ट्रांजैक्शन का भी काम खटाई में पड़ा है। जुनैद जावेद, सिटी 21। यहाँ आपको बताएं कि अवामी मसाइल हल करने वाले खुद मसाइल का शिकार हो गए। बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार मिला न दफ्तर। UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन समेत काउंसलर्स ने अवामी खदमत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की रिपेयरिंग शॉप को ही UC ऑफिस बना लिया। माजरा क्या है बता रहे हैं जुनैद जावेद अपनी इस रिपोर्ट में। अवामी मसाइल हल करने वाले खुद मसाइल का शिकार हो गए। जिना टाउन की UCs में नुमाइंदे दफातर तक से महरूम हैं। बल्दियाती नुमाइंदों ने इलेक्ट्रिक आइटम की दुकान को UC दफ्तर बना लिया। शर्की जिना टाउन की UCs के बल्दियाती नुमाइंदे कश्मकश में मुब्तला हो गए। हल्फ लिया लेकिन दफ्तर ना मिला। UC1 के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स दर बदर फिर रहे हैं। यह है रिपेयरिंग सेंटर, जहाँ TV और साउंड सिस्टम के रिपेयरिंग के कारीगर के साथ साथ बल्दियाती नुमाइंदे भी अवामी खिदमत के लिए दस्तयाब हैं। UC1 के चेयरमैन रहीम मेराज का कहना है कि UC ऑफिस के तमाम काम यहीं होते हैं। कवाइफ नामे बनाने में शदीद दुश्वारी होती है। दरअसल अवामी लोग रोडों पे बैठ जाते हैं। दरअसल असल तो रोना ये है कि अब तक हमें ऑफिस नहीं दिया है। ये हमारे भाई हैं कि इनको अटैच करवाने थे अपने डॉक्यूमेंट, तो ये इन्होंने मुझे किसी दोस्त के थ्रू फ़ोन करवाया, तो मैंने उनको ये कहा कि यहाँ बैठा हूँ इस वक्त, तो आप यहाँ आ जाएँ। तो हम रोड पे बैठ के काम कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा ऊपर वालों को थोड़ा ख्याल होना चाहिए। काउंसलर अब्दुल रहीम बोले, सिंध हुकूमत हमें फौरी UC ऑफिस अलॉट करे। ये मेरी रिपेयरिंग की शॉप है, तो मैं यहीं होता हूँ। सारी कंप्लेन यहीं से हम लिए जाते हैं, सेवरेज के हवाले से, दीगर लाइटों वगैरह के हवाले से। तो लिहाजा हमारे को तो कोई ऑफिस अभी तक अरेंजमेंट नहीं हुई है, तो हम यही वेट कर रहे हैं और यहीं बैठे होते हैं अपनी शॉप पे और सारा काम यहीं से करते हैं। बल्दियाती नुमाइंदों का ठिकाना ना होने के बाइस साइलिन को भी परेशानी का सामना है। मकीन कहते हैं कि कवाइफ की तस्दीक और दीगर मसाइल के हल के लिए कहाँ जाएँ। हमारे चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, तो इनका कोई बाकायदा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए यहाँ के इलाके के जितने भी आवाम है या जो भी मसाइल लेके आते हैं, इनको टेलीफोन पे ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे मैं अटेस्टेड करवाने आए हैं, यहाँ पे इनका तो कोई ऑफिस तो है ही नहीं, हमें गली गली ढूंढना पड़ता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए भी एक प्रॉपर तरीका हो जाएगा अगर इनको कोई ऑफिस दिया जाए। बल्दियाती इंतखाबात होने से आवाम ने सुख का सांस लिया ही था कि अब बल्दियाती नुमाइंदों के लिए दफातर और इख्तियारात की वसूली का एक नया चैलेंज सामने आ रहा है। जुनैद जावेद, सिटी 21। KPT इंटरचेंज फ्लाईओवर तरक्याती काम की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। KPT इंटरचेंज फ्लाईओवर पर तरक्याती काम शुरू कर दिया गया है। फ्लाईओवर का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि शारा फैसल और बलोच कॉलोनी से आने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब भेजा जा रहा है। तरक्याती मंसूबा वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से शुरू किया जा रहा है, जबकि फ्लाईओवर पर काम होने की वजह से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से आने वाली ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर हो रही है।
इंतजार की घड़ियां खत्म। गवर्नर हाउस के तहत करवाए जाने वाले IT कोर्स के एंट्री टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। एंट्री टेस्ट 16 जुलाई बरोज इतवार से शुरू होंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर 1 से 7500 तक का टेस्ट होगा। इस बात का ऐलान गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अपने जारी करदा वीडियो बयान में किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं। बरोज़ इतवार 16 जुलाई एंट्री टेस्ट IT का, जिसका आप सबको इंतज़ार था, आपने अप्लाई किया। अब वो घड़ी याद पहुंची है कि आपको ईमेल के ज़रिए भी और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से नंबर्स बता दिए जाएंगे, कितने नंबर से कितने नंबर तक के टेस्ट 16 जुलाई बरोज़ इतवार है, तो 1 नंबर से लेके और 7500 तक आपका इतवार को 16 जुलाई को टेस्ट है। और इसके बाद रोज़ाना ही आपको ईमेल के ज़रिए, यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया के ज़रिए बताते रहेंगे कि कब किसने पहुंचना है, किस टाइम पहुंचना है, किस दिन पहुंचना है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बोट बेसन पर जॉगिंग ट्रैक की वीडियो ट्वीट करते। वीडियो में शहरी को स्केटिंग करते देखा जा सकता है। मेयर कराची का अपने एक ट्वीट में कहना था कि बोट बेसन नहर ख़याम के तरह सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त करने के बाद शहरियों की सहूलत के लिए जॉगिंग ट्रैक बना दिया गया था। बात करें मौसम के हवाले से, और आपको बताएं कि कराची में मानसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई से बारिश बरसाएगा। शहर कायद में गर्मी की लहर बरकरार है। शहर का मतला जुज़वी अबरालूद, मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। शहर में मानसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई से एंट्री देगा। इस दौरान हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। मुहर्रम उल हराम की तैयारियों की बात कर लेते हैं। सिंध पुलिस ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया है। IG सिंध ने उलमा और ज़ाकिरीन की मुशावरत से सिक्योरिटी इक़दामात को ठोस और मजबूत बनाने की हिदायत कर दी है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदा CPO में इजलास हुआ, जिसमें लाड़काना, सखर पुलिस, रेंजर्स और मुतलका इस्लाह के लिए मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लिया गया और मज़ीद ज़रूरी हिदायत दी गई। इजलास में DIG हेडक्वार्टर सिंध, AIG ऑपरेशंस और AIG एडमिन, AIG लॉजिस्टिक्स और इलामा बाकी ज़ैदी ने शिरकत की, जबकि दूसरी जानिब वीडियो लिंक पर सखर और लाड़काना के DIG समेत उलमाए कराम वीडियो लिंक पर शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से शब्बर रज़ा की क़यादत में जाफरिया अलायंस के वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में होने वाली इस मुलाकात में मुहर्रम की सिक्योरिटी, इंतज़ामिया से ताउन और स्विरन वाक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के अयाम में अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्वीडन के सफ़ीर को ख़त लिखकर इस वाक़े पर माफ़ी का मुतालबा किया है, जबकि शब्बर रज़ा ने कहा कि कुरान मजीद की बेहुरमती से मुस्लिम उम्मा के जज्बात मजरूह हुए हैं। स्वीडन वाक़े पर गवर्नर सिंध का रद्द-ए-अमल पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने मंगोपीर में AVLC एहलकारों की फायरिंग से शहरी की हलाकत का मुकदमे में गिरफ्तार DSP को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने मंगोपीर में AVLC एहलकारों की फायरिंग से शहरी की हलाकत का मुकदमे की समाअत हुई है। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे में गिरफ्तार DSP कमरुज़्ज़मा को अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिम से बरामद असले का फॉरेंसिक करवाना है। मुलजिम के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि DSP कमरुज़्ज़मा मौके पर मौजूद नहीं थे। अदालत ने मुलजिम DSP कमरुज़्ज़मा को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। एक हफ्ते से लापता कस्टम्स अफसरान FIA के हाथों पकड़े गए। FIA हुकाम ने तारिक महमूद और यावर अब्बास को इस्लामाबाद जाते हुए गिरफ्तार किया। FBI ने भी एक्शन लेते हुए तारिक महमूद और यावर अब्बास दोनों को मुअत्तल करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। FIA हुकाम के मुताबिक कस्टम्स अफसरान के कब्जे से 54 लाख रुपए, 2500 अमरीकी डॉलर्स बरामद हुए। मुल्ज़िमान के कब्जे से मुत्तहिदा अरब अमारात के 6100 दिरहम भी बरामद हुए। दोनों अफसरान को कस्टम्स में मेगा करप्शन स्कैंडल के तहत गिरफ्तार किया गया।
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز دن بھر مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ تفصیلات رانا ایاز کی رپورٹ میں۔ دن کے آغاز پر مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا گیا، جو بعد میں سرمایہ کاروں کی جانب سے منافع کے حصول کے خاطر شیئرز فروخت کرنے پر مارکیٹ میں مندی کے بادل چھائے رہے۔ ماہرین کے مطابق مارکیٹ میں اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں اضافے کی خبروں نے سرمایہ کاروں کو محتاط انداز میں کام کرنے پر مجبور کیا۔ دیکھیں، یہ IMF کے جب سے معاہدہ ہوا، اس کے بعد جو تقریباً 5000 پوائنٹ کی آپ نے تیزی دیکھی گئی، اب جو تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ آ رہی ہے، ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو انویسٹر تھوڑے سے محتاط ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انٹرسٹ ریٹ اتنا جو 22% پہ کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ آلریڈی اتنی مارکیٹ بڑھ چکی ہے، تو اب تھوڑا سا یہ اوور آل ہوا ہے، تھوڑا سا ویٹ کر رہے ہیں، انویسٹر جو ویٹ کر رہے ہیں کہ اپرچونیٹی ملے تو اس کو اویل کریں۔ مارکیٹ میں مجموعی طور پر 321 کمپنیوں کے 26.7 کروڑ کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جس میں 98 کمپنیوں میں اضافہ اور 194 کمپنیوں میں کمی اور 29 کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ سندھ پریمیئر لیگ سیزن 1 کا آغاز 19 ستمبر سے ہوگا۔ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے اس بات کا اعلان PSL اور کنگڈم ویلی کے درمیان بے نظیر آباد لارڈز کی ملکیت شپ کے معاہدے کے موقع پر کیا۔ اس حوالے سے شعیب مختار کی رپورٹ۔ سندھ پریمیئر لیگ اور کنگڈم ویلی کے مابین بے نظیر آباد لارڈز کی ملکیت شپ کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ ایک اور سوینئر ہے شہزاد بھائی، رائٹ سائڈ پہ دیکھیں سامنے کی طرف۔ سندھ اسمبلی آڈیٹوریم میں نیوز کانفرنس کے موقع پر صدر SPL عارف ملک، CEO چودھری شہزاد اختر، کنگڈم ویلی کے چیئرمین غلام حسین شاہد، سابق ٹیسٹ کرکٹر اور SPL کے مینٹور عبد الرزاق سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر بلدیات سید ناصر شاہ نے کہا کہ SPL کا اصل مقصد ملک کا نام روشن کرنا ہے۔ کرکٹر کسی صوبے کا نہیں، پاکستان کا کھلاڑی کہلاتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ روشن ہو۔ جب وہ یہاں سے بچہ، جس طرح بتایا گیا، ایک بچہ گیا ہے اور وہ ہو کے آ گیا ہے، تو یا جو جب کھیلے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ سندھ کا کھیل رہا ہے، یہ بلوچستان کا کھیل رہا ہے، وہ پاکستان کا کھیل رہا ہے۔ شاہد افریدی یا عبد الرزاق صاحب جب باہر کھیلتے تھے تو سب کی ایک ہی پہچان تھی، پاکستان۔ تو ہم سب کے لیے سب سے اہم پاکستان ہے۔ سابق کپتان اور SPL کے برانڈ ایمبیسڈر شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ SPL کی طرح بلوچستان لیگ بھی ہونی چاہیے، اور امید ظاہر کی کہ سندھ پریمیئر لیگ کے بہترین پرفارمرز کو قومی ٹیم کی نمائندگی کا موقع ملے گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ جس طرح ناصر بھائی نے یہ انیشیٹو لیے سندھ کے بچوں کے لیے، اسی طرح کا ایک انیشیٹو میں بلوچستان کے بچوں کے لیے بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ بھی ہو کے رہے گا۔ تو ناصر بھائی تھینک یو سو ویری مچ، یہ پورے سندھ کے بچوں کے لیے، کیونکہ میرا ٹریول بہت زیادہ ہوتا ہے فاؤنڈیشن کی وجہ سے، میرا آنا جانا بہت زیادہ ہے وہاں پہ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں میں، لیکن فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے جو یہ انیشیٹو لیا ہے، انشاءاللہ اب وہ وقت بہت جلد آئے گا کہ پاکستان ٹیم میں بھی سندھ سے تعلق رکھنے والے بچے انشاءاللہ ہوں گے۔ کنگڈم ویلی کے چیئرمین غلام حسین شاہد کا کہنا تھا کہ بے نظیر آباد لال کی فرنچائز لینے کا اصل وجہ شہید بے نظیر بھٹو سے عقیدت ہے۔ بچپن سے شوق تھا اسپورٹس کو سپورٹ کروں۔ کیمرامین محمد واحد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت